dear students. Now today we are starting our new topic, area under curve. This topic is also called application of definite integral, because in the previous chapter definite integral we have studied definite integral is area bounded with x-axis. So this topic is clearly application of definite integral. Calculation we will do using definite integral. Reading the language of the problem, we will have to locate the area. Which area we have to find. Once area is located, then using definite integral, we will find the area. So, the main thing in this chapter is how to locate required area. We will have to draw the diagram. For that purpose, we must have a good idea about the diagram of given curve. Curves will be given to us and we must have knowledge how to draw the diagram. So, in this chapter, today just I am going to discuss diagram of different curve, graph of different curve. I will also tell you curve sketching. If there is any unknown curve before us, then what steps we should follow to draw the graph of that curve. From the function chapter, we have already idea about some standard graph and their transformation. So here in this chapter, we will see so many standard curve about which diagram already we know, their transformation we know from the chapter function. Here we will see so many unknown curve जो कि आपने आज से पहले नहीं देखे हैं, उनको कैसे ड्रॉ करेंगे उसके लिए some steps I will tell you. तो but first I am going for standard curve and their transformation, जिसके बारे में हम लोग ने फंक्शन चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. तो कुछ स्टैंडर्ड कर्व्स को मैं रिकॉल करने जा रहा हूं. सो आई एम पुटिंग द हेडिंग स्टैंडर्ड कर्व and their transformation. Standard curves and their transformation. So, we have y is equal to x square. Clear? I think all of you must know diagram. It is upward parabola. Fine. Our requirement is x plus 1 whole square. We can draw it how? Now, in function chapter, I have told you transformation of graph. Standard has x ki power 2. Now, in place of x, there is x plus 1. Standard graph will come in left direction by 1 unit. So now vertex will be at minus 1. So this will be the graph of y is equal to x plus 1 whole square. We want to draw x minus 1 whole square. Then in case of number in subtraction with x, graph will go in right direction by how much unit? By 1 unit. Yeah. Similarly, we also know diagram of mod x. In shape of English alphabet V. Now, we are interested in mod of x minus 1. Graph will go in right direction by 1 unit. So this will be the graph of y is equal to mod of x minus 1. Now, I need mod of x minus 1. Mod of x minus 1. Both are different. So graph will also be different. In case of number in addition or subtraction with x,
standard graph go in right and left direction. But in case of number addition or subtraction with the whole standard part, graph go in above or below direction. So, graph of mod x minus 1 in downward direction. So, this is our graph of mod of x minus 1. Okay. So, right now I am talking about standard graph and their transformation. X square is a standard graph upward parabola. Mod x is a standard graph having shape like English alphabet V. Now, we know about log of x to base e. This is the graph of y is equal to log of x, getting x-axis at 1. Now, I want to draw log of x plus e. I want to draw log of x plus e. What to do? There's a standard graph will come in left direction by e unit. जो चीज 1 पे हो रही थी वो e यूनिट पीछे होगी. e यूनिट पीछे होगी, दैट मीन्स 1 माइनस e पे. सो नाउ ग्राफ विल कट x axis at 1 minus e, and this point will be minus e. Fine. So this will be the graph of y is equal to log of x plus e. More standard graphs we have. Y is equal to e to the power x. So this is the graph of y is equal to e to the power x. Y is equal to e to the power minus x. So this is our graph of y is equal to e to the power minus x. Clear? Then graph of trigonometric function we know. Graph of trigonometric function we know. Now I want to draw graph of e to the power mod x. Graph of e to the power mod x. Now this is transformation. फंक्शन चैप्टर में हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था कि x के ऊपर अगर मॉड आ जाए, मॉड किसके ऊपर आ गया? x के ऊपर. व्हाट हैपन? y के राइट वाला पोर्शन रिटेन करते हैं, लेफ्ट वाला पोर्शन गायब कर देते हैं और राइट वाले की मिरर इमेज लेफ्ट में बनाते हैं. फिर से सुनना. Whenever there is mod over x in a standard equation, we have mod over x. What we do? We retain the portion in the right of y-axis. We remove the portion in the left of y-axis, as well as we take mirror image of portion in the right of y-axis. So, in this manner, e to the power mod of x. What will be the diagram? I will retain the portion in the right. I will retain the portion in right. लेफ्ट वाला पार्ट गायब कर देंगे, राइट वाला पार्ट रखेंगे, एज वेल एज राइट वाले पोर्शन की मिरर इमेज ऑन द लेफ्ट. राइट वाले पोर्शन की मिरर इमेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. So in this way, this is the diagram of e to the power mod x. This is our diagram of e to the power mod x. Clear?
So this will be the diagram of e to the power mod x. Fine. So here I have applied the transformation where x has mod sign. Now, similarly, I want to draw sine of mod x. So, sine of mod x, how will it come? Once again we have mod sine over x. तो पहले हम किसका डायग्राम बनाएंगे? First we will draw डायग्राम ऑफ साइन एक्स. ये मैंने किसका डायग्राम बना दिया? साइन एक्स का बना दिया. फाइन. अब x के ऊपर मॉड है. व्हाट विल वी डू? राइट वाला पोर्शन रखेंगे, लेफ्ट वाला पोर्शन गायब करेंगे. राइट वाला पोर्शन रखेंगे, राइट वाला रखेंगे, लेफ्ट वाला गायब करेंगे. एज वेल एज राइट वाले की मिरर इमेज लेफ्ट में बनाएंगे. राइट वाले की mirror image left में बनाएंगे. So in this way, this is the diagram of sine of mod x. Diagram of sine of mod x. Now, one more transformation. We have to draw mod over sin x. We have to draw mod over sin x. Now, what's between two? Our standard is sine of x. Here we have mod over x. Here we have mod over whole sine of x. यहाँ पे mod पूरे के पूरे स्टैंडर्ड कर्व के ऊपर है. स्टैंडर्ड कर्व मैं किसे कह रहा हूँ? साइन ऑफ x को कह रहा हूँ. तो यहाँ पे mod हमारे पूरे के पूरे स्टैंडर्ड कर्व के ऊपर है. यहाँ पे mod केवल x के ऊपर है. Now, whenever we have mod over the whole standard curve, what we do? Once again, first we will draw diagram of sine of x. We will draw diagram of sine of x. ये मैंने किसका डायग्राम बना लिया? साइन ऑफ x का बना लिया. यहां पे हम लोगों ने क्या किया था? लेफ्ट वाला गायब किया था, राइट वाले की मिरर इमेज लेफ्ट में ली थी. बट हियर इन दिस सिचुएशन व्हेन वी हैव मॉड ओवर द होल स्टैंडर्ड कर्व, व्हाट विल वी डू? ध्यान से सुनना. नीचे वाले पोर्शन बिलो द एक्स एक्सिस, पोर्शन बिलो द एक्स एक्सिस शिफ्टेड above the x axis taking mirror image. Portion below the x axis are shifted above the x axis taking mirror image. Portion below the x axis are shifted above the x axis taking mirror image. Portion below the x axis are shifted above the x axis taking mirror image. So this is the diagram of mod of sin x. तो ये जो डॉट डॉट वाले पार्ट मैंने बनाए, व्हाट आर दे शोइंग? कि जितना पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे था सब एक एक करके ऊपर आ गया, टेकिंग मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस. चलिए इसको देखिएगा और अच्छे समझ में आएगा. y इज इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग एक्स. y इज इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग एक्स. हाउ टू ड्रॉ इट? पहले हम लोग बनाएंगे किसका? Diagram of log of x. First we will draw log of x. So this is log of x. Clear? This is log of x. Now, अब मैंने क्या बताया? स्टैंडर्ड के ऊपर मॉड होने पे व्हाट हैपन? ऊपर का पोर्शन ऊपर रहता है, नीचे वाला ऊपर आ जाता है टेकिंग मिरर इमेज. तो ये जितना पोर्शन नीचे है इसकी मिरर इमेज वी विल ड्रॉ अबव द एक्स एक्सिस. मिरर इमेज वी विल ड्रॉ अबव द एक्स एक्सिस. तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही? कि जो पोर्शन नीचे जा रहा था वो ऊपर आ गया टेकिंग मिरर इमेज. जो पोर्शन नीचे था वो ऊपर आ गया टेकिंग मिरर इमेज. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ मॉड ओवर
log x. Is it? So what I am talking about standard curve and their transformation. Y is equal to mod of sin x हम लोग ने बनाया, y is equal to mod over log of x बनाया. Now और डायग्राम लेते हो. Y is equal to x to the power 3. All of you must be aware of it. Y is equal to x to the power 3. This is diagram of y is equal to x to the power 3. Now, you may require power 1 by 3. Y is equal to x raised to the power 1 by 3. So this is the diagram of x to the power 1 by 3. We can also say these two are mirror image about the line y equal to x. Power 1 by 3 इनवर्स है पावर 3 का, और इनवर्स का ग्राफ आता है टेकिंग मिरर इमेज अबाउट y इक्वल टू x. तो x क्यूब हमें पता है, इसकी मिरर इमेज ले ली अबाउट y इक्वल टू x. सो वी आर गेटिंग दिस वन विच इज x टू द पावर 1 by 3. Now we have to draw minus time e to the power x. Y equal to minus time e to the power x. Now as a standard हम किसका ग्राफ जानते हैं? e की पावर x का, but it is minus time e to the power x. Now what happened? Mirror image about x axis. ये भी फंक्शन चैप्टर में ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ाया हुआ है. If we multiply with a minus sign, then what happens? Graph is inverted about the x-axis. For example, we know the diagram of e to the power x. ये डायग्राम है किसका? This one is the diagram of e to the power x. But here we require minus time e to the power x. We require minus time e to the power x. So what will happen? Mirror, ये जो ग्राफ जा रहा है इसकी मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस. We will take mirror image about x-axis. फाइन. तो ये ग्राफ यहां से पूरा हट जाएगा. एंड नाउ दिस इज अवर न्यू डायग्राम where this point is minus 1. Clear? So this is the diagram of minus time e to the power x. So माइनस से मल्टीप्लाई होने पे what happens? मिरर इमेज अबाउट x एक्सिस. एक सिंपल सा लेते हैं. y is equal to minus x square. क्लियर? हम किसका डायग्राम जानते हैं? x की पावर 2 का अपवर्ड पैराबोला. सो माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा? माइनस एक्स स्क्वायर विल बी क्लियरली डाउनवर्ड पैराबोला. Minus x square is clearly downward parabola. Fine. Now we have to draw log over minus x. We have to draw log over minus x. Fine. Once again we have minus sign, but this time minus sign is inside the standard curve and it is with x. यहाँ पे माइनस कहाँ था? पूरे के पूरे स्टैंडर्ड के बाहर था, बट यहाँ पे माइनस साइन स्टैंडर्ड कर्व के अंदर
x के साथ है। यहां पे क्या किया था, मिरर इमेज अबाउट x एक्सिस ली थी। हियर वी टेक मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस। फॉर एग्जांपल पहले मैंने डायग्राम बनाया log ऑफ x का, नाउ दिस इज डायग्राम ऑफ log ऑफ x। ये किसका डायग्राम है, अभी जो मैंने डायग्राम बनाया ये log ऑफ x का है। मुझे क्या चाहिए, log ऑफ -x। तो व्हाट विल आई डू, मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस। I will draw mirror image about y axis. So this is the diagram of log of -x. This is diagram of log of -x. और ये वाली ब्रांच किसकी है, ये वाली ब्रांच है log of x. This one is log of x and this one is log of -x. यहां भी चाहे तो हम लोग इसको बने रहने देते। ये वाला डायग्राम किसका है, e की पावर x का, और ये किसका है, माइनस टाइम e टू द पावर x. दिस इज e टू द पावर x and this is माइनस टाइम e टू द पावर x. फाइन. सो स्टैंडर्ड कर्व के अंदर माइनस साइन है, देन what transformation take place, माइनस साइन स्टैंडर्ड कर्व के बाहर है, then what transformation take place, is it? Now I am coming to other standard curve जिनके बारे में आपने कोऑर्डिनेट में पढ़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन ऑफ सर्कल x square plus y square is equal to a square. All of you know about it. It is circle having center at 0, 0 and radius a. Okay, x square plus y square is equal to a square is clearly circle having center at 0, 0 and radius a. Now आपको बोला गया ड्रॉ करिए y is equal to रूट ओवर a square minus x square. इसको समझिएगा, इट्स इंपॉर्टेंट वन. यू हैव टू ड्रॉ y is equal to रूट ओवर a square minus x square. नो डाउट जैसे ही आपको ये दिखा आपने स्क्वायरिंग कर ली, और स्क्वायरिंग करके इट्स लुकिंग अ सर्कल. डूइंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इट इज क्लियरली अ सर्कल. बट अब जो इक्वेशन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, गोल गोल सर्कल बनेगा जिसमें आधा पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर जाएगा, आधा पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे जाएगा. बट हमारा ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल इज दिस वन. ये तो कब आया, ये तो स्क्वायरिंग के बाद आया. और जो हमारा ओरिजिनल है वो क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू अंडर रूट. अंडर रूट इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव. जिनको नहीं पता अभी तक आप क्लियर कर लेना, मौका नहीं मिलेगा इसके बाद कभी. अंडर रूट, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव माना जाता है. तो जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है वो कहती है कि y मस्ट बी पॉजिटिव. गोइंग विद स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी आर गेटिंग अ सर्कल. और सर्कल के नाम पे डायग्राम कैसा आएगा, आधा एक्स एक्सिस के ऊपर और आधा एक्स एक्सिस के नीचे. एक्स एक्सिस के ऊपर मतलब पॉजिटिव, नीचे मतलब नेगेटिव. बट ओरिजिनल इक्वेशन कहती है y मस्ट बी पॉजिटिव. सो इन द नेम ऑफ डायग्राम I will draw only half circle here. I will draw only half circle here. बोलिए, ये समझ में आता है? So our diagram will be only the half circle, not the complete circle. Is it? क्या किया मैंने? दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी तो मुझे दिख रहा है कि इट शुड बी अ सर्कल. बट सर्कल आधा ऊपर आधा नीचे.
एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव होता है. ओरिजिनल इक्वेशन कह रही है y मस्ट बी पॉजिटिव, सो आई विल टेक ओनली द हाफ सर्कल एंड विच इज अबव एक्स एक्सिस. नाउ कोऑर्डिनेट में ही हम लोगों ने इलिप्स के बारे में पढ़ा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. We know its diagram. Clear? So this point a comma 0, 0 comma b, is it? आप सब जानते हो ये एलिप्स का इक्वेशन होता है. नाउ आई हैव टू ड्रॉ y is equal to I have to draw y is equal to b times root over 1 minus x square upon a square. क्लियर? जैसा सर्कल में था, सिमिलरली हियर एग्जाम में आपको ये बनाने को बोला गया y इज इक्वल टू b टाइम्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. जब आपने स्क्वायरिंग करी तो स्क्वायरिंग करने पे क्या बन गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. फाइन. इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड is giving standard ellipse. तो इलिप्स के नाम पे एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे दोनों जगह डायग्राम आएगा. बट हमारा ओरिजिनल इक्वेशन कह रहा है क्या, हमारा ओरिजिनल इक्वेशन कह रहा है y इज इक्वल टू b टाइम्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, जहां पे मैं b को पॉजिटिव ले रहा हूं. तो ओरिजिनल इक्वेशन के हिसाब से y क्या होना चाहिए, पॉजिटिव. सो हम इलिप्स तो बनाएंगे. फॉर दिस कर्व वी विल ड्रॉ ellipse, but we will draw only above the x-axis. We will draw the ellipse, but we will draw only above the x-axis. So this is the diagram. We will draw the ellipse, but we will draw only above the x-axis. Clear? So this will be the diagram of y is equal to b times root over 1 minus x square upon a square. एक और बनाते हैं. हमें ड्रॉ करना है y is equal to minus 2 times root over 1 minus x square by 9. क्या? दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, क्या मिला, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1. इसको देख के समझ में आ रहा है इट शुड बी एन इलिप्स. इसको देख के समझ में आ रहा है इट शुड बी एन इलिप्स. Where this point 3 comma 0 minus 3 comma 0 0 comma 2 0 comma minus 2. ये पूरा इलिप्स बनेगा. बट ओरिजिनल इक्वेशन कहती है y शुड बी नेगेटिव, तो हम ऊपर का पोर्शन एलिमिनेट करेंगे and we will take only and only this part. So this will be the required diagram.
दिस विल बी द रिक्वायर्ड डायग्राम. क्लियर? पहले मैंने पूरा एलिप्स बनाया बट आई नीड वाई नेगेटिव, तो मैंने ऊपर का पोर्शन रिमूव कर दिया एंड आई एम टेकिंग ओनली द पार्ट बिलो द एक्स एक्सिस. कुछ और सिंपल ग्राफ. y is equal to x, all of you know y is equal to x, line passing through origin. Now मान लीजिए बनाना है y is equal to 2x minus 1, तो आई होप सब बना लोगे. y is equal to mx plus c, तो ऐसी कुछ लाइन जाएगी जो रिप्रेजेंट करेगी किसको? y is equal to 2x minus 1 को. Fine. So in the area chapter, first we are talking about standard curve and their transformation. जितना ज्यादा हमें डायग्राम कर्व्स के पता होंगे, ग्राफ का आइडिया होगा, we will be comfortable in this chapter, because to find area we will draw the curve, we will locate the area, then using definite integral we will do the problem. Okay? Now students, we will study curve sketching. What's the meaning of curve sketching? I will tell you some points following which you will be able to draw any known unknown curve. थोड़ी देर इससे पहले हम लोग स्टैंडर्ड कर्व और ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे, उनको भी आप कर्व स्केचिंग की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं. बट आई विल एडवाइस यू कि आपके सामने एक प्रॉब्लम आया जिसमें कर्व आपको दिख रहा है, यू ऑलरेडी नो द डायग्राम ऑफ दैट, डू नॉट फॉलो कर्व स्केचिंग. अगर आपको पहले से रेडीमेड डायग्राम नोन है, यू जस्ट डू द प्रॉब्लम. कोई अननोन कर्व आपसे टकराता है जिसके बारे में आपको पहले से नहीं पता है, then you must follow algorithm of curve sketching. So here in curve sketching, what we follow, so first point is symmetry. A curve you have to draw and there is some kind of symmetry. वो अगर हमें पता लग जाए तो with the help of symmetry हम आधा डायग्राम बनाएंगे और रिमेनिंग आधा सिमेट्री से आ जाएगा. तो सिमेट्री में भी किस किस प्रकार की सिमेट्री होगी? सो कर्व के अंदर रिप्लेसिंग y with minus y, there is no change, then curve will be symmetric about x-axis. Point number 2, c of minus x comma y is equal to c of x comma y. Then curve will be symmetric about y-axis. In the equation of curve, replacing y with minus y, there is no change in equation. Replacing x with minus x, there is no change in the equation of curve. Curve will be symmetric about y-axis. Then point number 3, c of x comma y is equal to c of y comma x. What does it mean? Interchanging x and y, there is no change in the equation of curve, then in such situation curve will be symmetric about line y equal to x. Number 4, replacing x and y both with minus x minus y, there is no change in equation of curve.
C of minus x comma minus y is equal to C of x comma y, then curve will be symmetric about origin. What's the meaning of symmetric about origin? Symmetric in opposite quadrant. Symmetric about origin means symmetric in opposite quadrant. Let's take some example. Replacing y with minus y, there is no change. Example, like मैं आपको सभी का example दे रहा हूँ. For the first case, we can take y square is equal to 4ax. Right? Replacing y with minus y, there will be no change. What's the diagram? We know the diagram of y square is equal to 4ax. It is parabola symmetric about x-axis. Now, for this one, x square is equal to 4ay. Replacing x with minus x, no change. We know the diagram, upward parabola. Interchanging x and y, there is no change. So, here we can take the example, y is equal to 1 by x. We know the diagram, which is clearly symmetric about the line y equal to x. Then replacing x and y both with minus x minus y, there is no change. We can take the example y is equal to x to the power 3, and we know the diagram of y is equal to x to the power 3. It is called symmetric about origin, symmetric in opposite quadrants. Fine. So, whenever any unknown curve is before us, we will check symmetry, and we will check these 4 types of symmetry. Replacing y with minus y, no change in the equation of curve. Replacing x with minus x, no change in the equation of curve. Interchanging x and y, no change in the equation of curve. Replacing x and y both with minus x minus y, no change in the equation of curve. Once any symmetry is confirmed, we will draw half portion of the graph, remaining half will come through symmetry. Is it? Note करिए. Students, in curve sketching we have point number 2, which is domain. What should be the meaning of domain here? Values of x for which curve should be drawn. So I am writing find values of x for which curve exists. Values of x for which curve exists, because it is not necessary to draw the curve for all x. We will have to see given curve is existing for what values of x. We will draw the diagram only for those x. Number 3, find intersection points with x-axis and y-axis. क्लियर? हमारा जो कर्व है वो x-axis को कहाँ पे कट करता है, y-axis को कहाँ पे कट करता है. This knowledge must be with us, and we know to find intersection point with x-axis, x-axis को कट करना है, y equal to 0 रखेंगे. To find intersection point with y-axis, x को 0 रखेंगे. तो we must find the points where curve is intersecting x and y-axis. Number 4, find value of curve or find value of y when
x is moving towards plus minus infinity. Find value. देखिए नो डाउट पॉइंट नंबर 4 तभी अप्लीकेबल होगा जब डोमेन हमारी क्या आ रही होगी, ऑल एक्स आ रही होगी. डोमेन अगर लिमिटेड एक्स हुई तो पॉइंट नंबर 4 ऑटोमेटिकली नलिफाई हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ y निकालना व्हेन एक्स इज मूविंग टुवर्ड्स प्लस माइनस इन्फिनिटी. कर्व की डोमेन अगर ऑल एक्स होगी तभी पॉइंट 4 की बात आएगी, अदरवाइज पॉइंट 4 बेकार चला जाएगा. देन नंबर 5, फाइंड इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी. क्लियर. अब बात आएगी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की. हम ये पता कर लें कि किस इंटरवल में कर्व इंक्रीज करेगा, किस इंटरवल में कर्व डिक्रीज करेगा. हैविंग दिस आइडिया वी कैन ड्रॉ द कर्व. नंबर 6, फाइंड पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा. ये क्लियर हो जाए कि वेयर कर्व हैज मैक्सिमा, वेयर कर्व हैज मिनिमा, तो और बेटर वे में हम कर्व ड्रॉ कर लेंगे. नंबर 7, फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. नंबर 8, फाइंड intervals of concavity and convexity. Yeah. So these are the points following which we can draw the accurate graph of a given curve. So इन सारे पॉइंट से अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि हम लोग ने जो पूरी डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ी थी फ्रॉम द चैप्टर फंक्शन टू चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जितनी भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं उन सबको अगर अप्लाई कर दिया जाए तो वी कैन ड्रॉ डायग्राम ऑफ अ गिवन कर्व. फाइन. बट हमारा चैप्टर है एरिया अंडर द कर्व, वेयर मेन जॉब इज टू फाइंड द एरिया. एरिया निकालने के लिए हम लोग कर्व ड्रॉ करेंगे. अब अगर इतने सारे पॉइंट्स को फॉलो करके कर्व बनाएंगे तो एरिया तो हो सकता है कि निकले ही ना, कर्व बनाने में ही पूरा समय चला गया. सो अब जो मैं बोल रहा हूं बड़े ध्यान से सुनिएगा. हियर इन दिस चैप्टर एरिया अंडर द कर्व देयर इज नो नीड टू ड्रॉ 100% एक्यूरेट ग्राफ. आवर पर्पस विल बी टू ड्रॉ रफ स्केच. हमें कर्व का एक रफ स्केच बनाना होगा जिससे कि ये समझ में आए कि विच एरिया वी हैव टू फाइंड, एंड देन दैट एरिया वी विल बी फाइंड विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल. So our job is to locate the area. For that purpose, rough sketch is enough. No doubt कि अगर आप ये सारे पॉइंट फॉलो कर दें तो बहुत अच्छी बात है, 100% एक्यूरेट ग्राफ आपको मिल जाएगा. बट इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करने में जो समय लगेगा वो समय अपने पास नहीं है. तो एक एडवाइस अब ये दी जाती है, मैं नोट लिख रहा हूं. नोट में मैं ये लिख रहा हूं, using only first 4 points we can always draw a rough sketch of given curve. ध्यान दीजिए. कौन से मैंने 4 पॉइंट बोले? पहला पॉइंट सिमेट्री, दूसरा पॉइंट डोमेन, तीसरा पॉइंट इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, एंड द फोर्थ पॉइंट वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज मूविंग टुवर्ड्स प्लस माइनस इंफिनिटी. टोटल पॉइंट्स आर 8, बट बोला ये जा रहा है फॉलोइंग फर्स्ट 4 पॉइंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर एबल टू ड्रॉ रफ स्केच ऑफ गिवन कर्व. एंड हियर इन दिस चैप्टर आवर नीड इज टू ड्रॉ जस्ट अ रफ स्केच. हमें 100% एक्यूरेट ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ती है. सो चैप्टर है आपका एरिया अंडर द कर्व. आपकी जॉब होगी एरिया लोकेट करना,
उसके लिए आपको कर्व का डायग्राम बनाना होगा. फॉलोइंग द फर्स्ट 4 पॉइंट्स वी विल बी एबल टू ड्रॉ द डायग्राम. हमें पॉइंट नंबर 5, 6, 7, 8 यहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू टेक सम एग्जांपल्स जहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पॉइंट्स को फॉलो करते हुए जो पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं वी कैन ड्रॉ द डायग्राम. इज इट? सो I am taking first one, that is y is equal to 8 upon 1 plus x square. ओके, मैंने आपको जो जो बताया 1 by 1 उसको फॉलो करिए. सबसे पहले क्या चेक करेंगे? सबसे पहले चेक करेंगे सिमेट्री. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक सिमेट्री. इज देयर एनी काइंड ऑफ सिमेट्री? x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो. विल देयर बी एनी चेंज? देयर इज नो चेंज. तो क्लियरली हियर वी हैव सिमेट्री अबाउट y एक्सिस. सिमेट्रिक about y axis. Replacing x with minus x, there is no change. So this curve is symmetric about y axis. Now, अब बात आएगी डोमेन की. May I say this curve is defined for all x? This curve is defined for all x. So x belonging to R. Then इंटरसेक्शन पॉइंट विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात आएगी. इंटरसेक्शन पॉइंट विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे निकालोगे? x को 0 रखने पे y कितना आ रहा? 8. तो मैं लिख रहा हूं, हम लोग निकालेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट्स विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस. Intersection point with coordinate axis. What is coming? Cutting y-axis at x equal to 0. y-axis को कहां पे कट करेगा? y-axis को कट करना मतलब x equal to 0. Sorry, cutting y-axis at y equal to 8. वी हैव टू फाइंड कि y एक्सिस को कहां पे कट करेगा. y एक्सिस को कट करने का मतलब होता है x इक्वल टू 0. पुटिंग x इक्वल टू 0 क्या मिला? y इक्वल टू 8. तो कटिंग y एक्सिस एट y इक्वल टू 8. नाउ अब ध्यान से सुनना. अब हम पता करेंगे x एक्सिस को कहां पे कट करेगा. x एक्सिस को कट करने के लिए क्या रखते हैं? y की जगह 0 रखते हैं. जब y की जगह 0 रखोगे तो मल्टीप्लीकेशन होकर 0 इक्वल टू 8 आएगा, विच इज नॉट पॉसिबल. सो आई एम गोइंग टू राइट नॉट कटिंग x एक्सिस. ध्यान दीजिए, x एक्सिस कट नहीं होगी. x एक्सिस कट करने के लिए y को 0 रख के x निकालेंगे जो कि नहीं निकल रहा. सो क्लियरली x एक्सिस कट नहीं होगी. फिर हम लोग क्या निकालते हैं? वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज स्टैंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी. सो यहां पे क्या दिख रहा है? आप निकालेंगे वैल्यू ऑफ y. सो क्लियरली x के इंफिनिटी होने पे y किधर जा रहा है? 0 की ओर. तो y टेंडिंग टू 0 व्हेन x इज स्टैंडिंग टू प्लस माइनस इनफाइनाइट. सो स्टूडेंट्स, आई हैव फॉलोड फर्स्ट 4 पॉइंट्स ऑफ कर्व स्केचिंग. वन इज सिमेट्री, सेकेंड इज डोमेन, थर्ड इज intersection with coordinate axis, fourth is value of y. Now following these 4, I am trying to draw the diagram. Let's see. Okay. Symmetric about y axis. तो मैं आधा ग्राफ बनाऊंगा, रिमेनिंग आधा सिमेट्री से आ जाएगा. डोमेन ग्राफ मुझे पूरे x एक्सिस के लिए बनाना होगा. आइए, इंटरसेक्शन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस. हमें एक ऐसा डायग्राम बनाना है जो y एक्सिस को 8 पे कट करे. कर दिया मैंने. ठीक. y टेंडिंग टू 0 व्हेन x इज स्टैंडिंग टू इंफिनिटी. प्लस इंफिनिटी यहां पे, माइनस इंफिनिटी यहां पे. देखिए बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनिए. 0 पे वैल्यू कितनी है? 0 पे वैल्यू 8 है और इंफिनिटी पे क्या लेनी है? 0.
यानी ग्राफ ऊपर से नीचे उतरेगा। एक चीज और देखिए, इक्वेशन क्लियर कट बता रहा है कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे y कम होता जाएगा, x का टर्म डिनोमिनेटर में है, जैसे जैसे आप x की वैल्यू डालते जाओगे y कम होता जाएगा। तो 0 पे अगर 8 है तो आगे के x रखने पे y हमें कम मिलेगा, तो ग्राफ यहां से नीचे उतरेगा। अब ग्राफ जब नीचे उतरेगा तो एक कंफ्यूजन होता है कि x एक्सिस को काट के नीचे जा सकता है, नहीं, नॉट कटिंग x एक्सिस। आपको एक ऐसा कर्व बनाना है जो यहां से नीचे उतरे लेकिन x एक्सिस को कट ना करे। तो एक और एक ही चांस है कि कर्व हमारा इस तरह से इंफिनिटी पे जाते जाते x एक्सिस के पैरेलल हो गया। नाउ वी हैव टू ड्रॉ इट्स सिमेट्री फॉर द नेगेटिव x एक्सिस। So this is the final diagram. So this is the diagram of y is equal to 8 upon 1 plus x square. क्या क्या मैंने फॉलो किया, मैंने सिमेट्री पता करी, डोमेन पता करी, इंटरसेक्शन पॉइंट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस पता किया, वैल्यू ऑफ y पता करी, एंड देन आई एम एबल टू ड्रॉ द डायग्राम। चेक करिए इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो पूछिए मेरे से। इज देयर एनी कंफ्यूजन? फिर मैं दूसरा डायग्राम लेता हूं। ओके, चलिए, नाउ आई एम टेकिंग द नेक्स्ट वन। इट इज mod x plus mod y equal to 1. Mod x plus mod y is equal to 1. mod x plus mod y equal to 1। सिमेट्री की बात करो, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, नो चेंज, y को माइनस वाई से रिप्लेस करो, नो चेंज, x और y दोनों को माइनस से रिप्लेस करो, नो चेंज, x और y इंटरचेंज करो, नो चेंज। तो आई कैन से हियर वी हैव एवरी काइंड ऑफ सिमेट्री। हम लोगों ने टोटल 4 सिमेट्री पढ़ी है, चारों की चारों यहाँ पे एप्लीकेबल है। मतलब जो डायग्राम आएगा वो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस भी होगा, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस भी होगा, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन भी होगा, एंड सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स भी होगा। चलिए, अभी मैं केवल इतना ले रहा हूं, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एंड y axis both। Clear? Here we have all kind of symmetry। मैं अभी दो ही मेंशन कर रहा हूं, symmetric about x axis, symmetric about y axis। Domain for every x it is defined। Come to the intersection point। x को 0 रखो तो y क्या आएगा, प्लस माइनस 1। क्या लिखेंगे, कटिंग y axis, cutting y axis at y equal to plus minus 1, x axis at x equal to plus minus 1। वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y हम लोग कहते हैं y की वैल्यू निकालो व्हेन x is standing towards infinity। अब आप अगर y को इंफिनिटी रखोगे तो बताओ, नॉट पॉसिबल आएगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं नो y when x standing towards plus minus infinity। आप चेक कर लेना, आप x को इंफिनिटी रखोगे तो मॉड y 1 माइनस इंफिनिटी, इम्पॉसिबल, क्योंकि मॉड y क्या होगा, पॉजिटिव। सो नो y when x is standing towards plus minus infinity। आइए चलिए डायग्राम बनाते हैं। सो वी हैव मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हमें एक ऐसा डायग्राम बनाना है जो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस भी है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस भी है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस भी है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस भी है। तो मैंने ये कहा, लेट फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम इन फर्स्ट quadrant only। Let first draw the diagram in first quadrant only। So what will happen, x positive, y positive। So mod x plus mod y equal to 1 implies that x plus y equal to 1।
ठीक है। अब मैं जब डायग्राम बनाने गया तो मैं डायग्राम पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाऊंगा और क्या बनाऊंगा, x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये मेरी लाइन हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड आई होप ये लाइन तो सबको बनाना आता होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 1। क्लियर, ये x प्लस वाई इक्वल टू लाइन हो गई। सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, बोलिए, दैट शुड बी क्लियर। सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, तो जो पोर्शन ऊपर बना है उतना पोर्शन हमें नीचे बनाना होगा। थोड़ा सा मेरा डायग्राम कम सुंदर बना है, अब अगर ध्यान से देखो सो इट इज अ स्क्वायर। फाइन, अगर आप ध्यान से देखो दिस डायग्राम इज अ स्क्वायर, जो हम लोगों ने बनाया इट्स अ स्क्वायर। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस कर्व, एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस कर्व मींस इस कर्व के अंदर का एरिया। दिस कर्व इज अ स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ हाउ मच साइड, मैं यहां लिख दे रहा हूं, स्क्वायर ऑफ साइड कितना, ये 0 0 है तो ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, तो साइड कितना हुआ, √2। सो वी आर गेटिंग डायग्राम स्क्वायर ऑफ साइड √2 यूनिट। एग्जाम में अगर प्रॉब्लम पूछ दिया जाए तो रट लेना। अच्छा एक चीज और समझना, मान लीजिए इधर 2 होता तो आने वाले स्क्वायर के ये सारे पॉइंट क्या हो जाते हैं, 2 - 2 हो जाते हैं। यहां पे a होता तो बनने वाले स्क्वायर के लिए ये सारे पॉइंट क्या हो जाते, a हो जाते। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि अगर ये फिगर चेंज कर दी जाए तो स्क्वायर तब भी रहेगा, केवल ये पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे, अकॉर्डिंगली बनने वाले स्क्वायर की साइड चेंज हो जाएगी। क्या, नोट करिए। Now I have taken y is equal to x minus 1, x minus 2, x minus 3. Symmetry. क्या सिमेट्री कैसे चेक करते हैं, y को -y से रिप्लेस किया, विल इट चेंज, यस इट विल चेंज। x को -x से रिप्लेस किया, विल द कर्व चेंज, यस कर्व विल चेंज। x और y इंटरचेंज कर दें, कर्व चेंज हो जाएगा। आई एम गोइंग टू राइट देयर इज नो सिमेट्री। इससे पहले हम लोगों ने जो 2 एग्जाम्पल किए वहां पे सिमेट्री थी, बट हियर वी हैव नो सिमेट्री। इज दिस ओके? नाउ डोमेन, डोमेन की अगर मैं बात करूं, यस ऑल एक्स कैन बी पुट इंटरसेक्शन पॉइंट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। चलिए एक्स को 0 रखो, पहले बात करते हैं कटिंग वाई एक्सिस को कहां पे कट करेगा, तो एक्स को 0 रखो। एक्स को 0 रखने पे वाई कितना आ रहा है, -6। सो कटिंग y-axis at y equal to -6 and x-axis at x-axis को कहां पे कट करेगा, उसके लिए y0, y0 कब आएगा, when x is 1, 2 and 3. So cutting x-axis at 1, 2 and 3. Now come to the value of y. y की वैल्यू क्या जाएगी, मल्टीप्लाई करोगे क्यूबिक बनेगी x की पावर 3। सो y कितना जाएगा, तो y टेंडिंग टू इनफाइनाइट व्हेन x टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट, y विल टेंड टू माइनस इनफाइनाइट व्हेन x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट। सो नाउ कीपिंग दीज पॉइंट्स आई एम गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो सिमेट्री, इज इट, किसी प्रकार की सिमेट्री नहीं है। एक्स एक्सिस कट हो रही है, कहां कहां पे कट हो रही है, 1 पे, 2 पे, 3 पे। वाई एक्सिस कट हो रही है, कहां पे कट हो रही है, -6 पे। बहुत ध्यान से समझना, मुझे एक ऐसा डायग्राम बनाना है जो एक्स एक्सिस को 1, 2 और 3 पे कट करे। आई हैव टू मेक अ डायग्राम कटिंग एक्स एक्सिस एट 1 and 2। तो नाउ क्वेश्चन विल अराइज कि बिटवीन 1 and 2 ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा कि नीचे होगा। मुझे एक ऐसा डायग्राम बनाना है जो 1 और 2 दोनों से पास हो।
तो बिटवीन 1 एंड 2 ऊपर होगा कि नीचे होगा एक्स एक्सिस के, हम चेक कर सकते हैं। बिटवीन 1 एंड 2 ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा कि नीचे, उसको पता करने के लिए कोई पॉइंट रख दो, लेट्स से 1.5। 1.5 रखने पे पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, दो निगेटिव और एक पॉजिटिव का मल्टीप्लीकेशन क्या बनाएगा? पॉजिटिव। सो 1 और 2 के बीच में डायग्राम एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा। 2 और 3 के बीच में डायग्राम पता करने के लिए 2.5 रखने पे पॉजिटिव, 2.5 रखने पे पॉजिटिव निगेटिव, दो पॉजिटिव और एक निगेटिव मिलके क्या देंगे? निगेटिव। तो डायग्राम 2 और 3 के बीच में एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा। 3 के बाद 3 से बड़ा नंबर, 3 से बड़ा नंबर रखने पे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो मेरा डायग्राम आफ्टर 3 ऊपर इंफिनिटी की ओर भागेगा, ऊपर इंफिनिटी की ओर भागेगा। नाउ 1 के पहले, अब मुझे डायग्राम किधर बनाना? 1 के पहले, 1 से छोटा पॉइंट, 1 से छोटा पॉइंट रखने पे नेगेटिव निगेटिव निगेटिव, तीन नेगेटिव का प्रोडक्ट निगेटिव। तो 1 के पहले ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा और इस पॉइंट को भी कनेक्ट करना है। सो इन दिस वे डायग्राम, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि मैंने मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा मिनिमा, कॉन्केविटी, कॉन्वेक्सिटी, इन्फ्लेक्शन कुछ भी फॉलो नहीं किया, just following the 4 points: symmetry, domain, intersection with coordinate axis, value of y, we are able to draw the diagram. So this curve sketching is too much helpful when we have an unknown curve. Following the points and only the first 4 points, we can draw the diagram. Is it? Note करिए. Now student, we will draw y is equal to x into e to the power x square. तो first of all क्या पता करेंगे? सिमेट्री। सो सिमेट्री की बात करें, then putting minus x, there will be change, putting minus y, there will be change. But if I put x and y both minus x minus y, minus x minus y minus minus get cancelled. So there is symmetry clearly about origin. Symmetric about origin. Symmetric about origin means symmetric in opposite quadrants. Then we will talk about domain. So if I ask you what values of x we can put here, answer every real x can be put here. So x belonging to R. Then intersection point, then we will find intersection points with coordinate axis. Intersection points with coordinate axis. Putting x 0, y is coming 0, putting y 0, x 0. So graph will cut at origin. Then we find value of y. So putting x infinity, देखो x को infinity रखोगे तो e की पावर infinity भागेगा, तो y tending to infinite when x tending to infinite. पुटिंग माइनस इनफाइनाइट, ई टू द पावर इंफिनिटी जाएगा, लेकिन माइनस इनफाइनाइट रखने पे बिकॉज ऑफ माइनस वाई विल कम माइनस, सो वाई टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी व्हेन एक्स टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी. नाउ यूजिंग ऑल दीज पॉइंट्स आई एम गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम. वी हैव टू मेक अ डायग्राम which is symmetric about origin. So in such situation we should draw diagram only in the first quadrant. Then using the point of symmetry we can draw the whole graph. So I am going to draw in the first quadrant. I have to draw y is equal to x into e to the power x square. Just tell me for positive x. First quadrant means positive x. जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे y बढ़ता जाएगा, x की छोटी वैल्यू रखोगे y छोटा आएगा, x की बड़ी वैल्यू रखोगे y बड़ा आएगा. सो अगर एक रफ स्केच की बात की जाए तो वी कैन से
in the first quadrant, we will get this kind of increasing graph. देखो right now concave convex के चक्कर में मैं नहीं पढ़ रहा, I am making a rough sketch जो मुझे ये बता रहा कि graph will be increasing. Now symmetric and opposite quadrant, symmetric and opposite quadrant. So first quadrant में अगर ऐसा दिख रहा तो उसकी symmetry and opposite quadrant. So this is my diagram. Yeah, this is my diagram of y is equal to x into e to the power x square. Getting it? So student, इस तरह का कर्व आपको मिल जाए, डरना नहीं है, you can easily draw. Now one more I am taking. This time I have y is equal to x time e to the power minus x. चलिए मैं इसको ले रहा हूं, y is equal to x time e to the power minus x. Next is y is equal to x time e to the power minus x. चलो one by one. Putting minus x, curve will change. Putting minus y, curve will change. Putting x and y both minus, curve will change. तो सिमेट्री की अगर बात करें तो there is no symmetry. Domain, all x can be put here. Intersection points, x को 0 रखने पे y will come 0, y को 0 रखने पे x will come 0. So what to say? Graph will pass through origin. Graph will pass through origin. Now value of y. Putting x infinity, x को infinity रखोगे तो e to the power minus infinity 0 और ये infinity तो infinity into 0. यहां पे अब कंफ्यूजन आएगा. Try to understand. मुझे y की वैल्यू पता करनी है when x tending to plus infinite. y पता करना है when x tending to plus infinity. अब अगर आप इंफिनिटी को डायरेक्ट रख रहे हो तो e टू द पावर माइनस इंफिनिटी तो 0 होता है, बट इंफिनिटी इंटू 0 इनडिटरमिनेट होने लगेगा. तो यहां पे यू मस्ट टेक हेल्प ऑफ लिमिट x इंटू e टू द पावर x वेयर x टेंडिंग टू इनफाइनाइट. नाउ इट इज x अपॉन e टू द पावर x. अप्लाई एल हॉस्पिटल. सो लिमिट ओवर 1 अपॉन e टू द पावर x. x को इन्फिनिटी रखोगे तो ये क्या है? इट इज इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट. नाउ e टू द पावर इनफाइनाइट 1 अपॉन इनफाइनाइट वी आर गेटिंग 0. सो x के इन्फिनिटी जाने पे y इज कमिंग 0. देन व्हेन x इज टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी. अब x अगर माइनस इन्फिनिटी होगा तो माइनस इन्फिनिटी रखने पे क्या बन जाएगा? e टू द पावर इन्फिनिटी. माइनस इंफिनिटी रखने, दिस इज माइनस इंफिनिटी, दिस इज e टू द पावर इंफिनिटी. इंफिनिटी इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी, एक बड़ा और इंफिनिटी. सो y इज टेंडिंग टू माइनस इंफिनिट. नाउ having idea of these points, now I am going to draw the diagram. ठीक है? देखो 0 पे कर्व क्या रहेगा? 0 पे कर्व हमारा 0 रहेगा. एक्सेस कोऑर्डिनेट एक्सेस केवल और केवल ओरिजिन पे कट होगी. अब डायग्राम मेरा 0 से चला और इंफिनिटी पे, इंफिनिटी पे से क्या हो जाना है? 0 हो जाना है. अब ये भी आपको क्लियर हो गया हो, जब आप x की पॉजिटिव वैल्यूज रखोगे तो y क्या आएगा? पॉजिटिव. जब भी आप x की कोई पॉजिटिव वैल्यू दोगे कुछ ना कुछ y आएगा. x की वैल्यूज देने पे कुछ ना कुछ y आएगा और इंफिनिटी होते होते ग्राफ को 0 हो जाना है. तो आर यू गेटिंग इट? ग्राफ ऐसा कुछ आएगा. अगर हम लोग मैक्सिमा मिनिमा निकाल लें तो वी कैन गेट द पॉइंट कि कहां पे मैक्सिमा बन रहा. बट ये क्लियर कट समझ में आ रहा है कि ग्राफ एक मैक्सिमा बना के फिर 0 की ओर जा रहा होगा. कैसे मैंने डिसाइड किया? फिर से सुनना. कोई भी x रखने पे, पॉजिटिव x रखने पे y will give positive value. That means
फॉर एवरी पॉजिटिव एक्स देयर शुड बी सम वाई, बट इंफिनिटी आते आते ग्राफ को जीरो होना है, सो ग्राफ मेरा ऊपर गया होगा, फिर वापस नीचे आके जीरो की ओर टेंड कर गया होगा। नाउ नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव एक्स रखने पे y विल बी नेगेटिव, क्योंकि एक्सपोनेंशियल तो पॉजिटिव होता है, और माइनस इंफिनिटी होते होते ग्राफ को किधर जाना है, माइनस की ओर जाना है, तो मैं कहूंगा मेरा ग्राफ ऐसा कुछ आएगा। फिर से मैं ध्यान देना, मैंने इस चीज ग्राफ कॉनकेव होगा कि कॉन्वेक्स होगा इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया, मैंने एक रफ स्केच प्लान किया, और वो रफ स्केच मुझे क्या बता रहा कि नेगेटिव एक्स के लिए ग्राफ नेगेटिव होगा और माइनस इंफिनिटी पे माइनस इंफिनिटी की ओर जा रहा होगा, तो रिक्वायर्ड ग्राफ विल बी समहाउ इन दिस मैनर, इज इट? चलिए एक और लेते हैं। नाउ आई एम टेकिंग y square times 2a minus x is equal to x cube, where a greater than 0. Here a is greater than 0. Y square into 2a minus x is equal to x cube, where a greater than 0. Fine. So, first of all, symmetry. Minus y रखने पे because of y square no change will occur. Putting minus y there is no change. Putting minus x change will occur. तो symmetry की बात करें, so there is clear cut symmetry and symmetric about y axis. Sorry, symmetric about x axis. Putting minus y no change, so symmetric about x axis. अब यहां पे डोमेन का पार्ट इंटरेस्टिंग है। अब अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं, सो इट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 2a माइनस एक्स, क्लियर? नाउ x क्यूब अपॉन 2a माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो x अपॉन 2a माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x upon x minus 2a less than or equal to 0. It implies that x belonging 0 to 2a. तो हमारी जो डोमेन है that is x belonging 0 to 2a. We will make the diagram only for values of x 0 to 2a. x belonging 0 to 2a. Okay? Now इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे आते हैं। x को 0 रखने पे y विल कम 0 और y को 0 रखने पे x विल कम 0। तो इंटरसेक्शन पॉइंट की बात करें तो ग्राफ विल पास थ्रू 0,0, वैल्यू ऑफ y। सो यहां पे अच्छा x इंफिनिटी की बात ही नहीं आएगी, क्योंकि हमारी डोमेन क्या है 0 to 2 है। अभी तक हम लोग y की वैल्यू कहां पता करते थे, व्हेन x इज मूविंग टुवर्ड्स प्लस माइनस इंफिनिटी, बट यहां पे x इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी होने पे कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि डोमेन इज 0 to 2 है। एक चीज अगर देखना है तो हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारा जो y है दैट इज मूविंग टू प्लस माइनस इंफिनिटी व्हेन x is tending to 2a. फाइन। यूजुअली अभी तक हम लोग क्या करते थे, x के इंफिनिटी जाने पे पता करते थे y कितना होगा। दिस टाइम x can't be infinite because domain is 0 to 2a. तो मैंने ये वाला पार्ट इस बार एक्स्ट्रा किया है, डायरेक्ट दिख रहा है कि x के 2a होने पे y क्या होने लगेगा, इंफिनिटी होने लगेगा। अब मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं। सो डायग्राम कितने x के लिए बनाएंगे, इन बिटवीन 0 एंड 2a। डायग्राम जो भी बनेगा 0 और 2a पे बनेगा, एंड x के 2a होने पे y हमारा किधर जाएगा, इंफिनिटी की ओर जाएगा। x के 2a होने पे y किधर जाएगा, इंफिनिटी की ओर जाएगा। राइट? नाउ आई हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ व्हिच इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस।
तो मैं केवल ऊपर का बनाऊंगा, नीचे का पार्ट सिमेट्री से आ जाएगा। फाइन। सो 0 और 2a के बीच में मुझे डायग्राम बनाना है। नाउ 2a होने पे ग्राफ को इंफिनिटी जाना है। 2a पे ग्राफ की वैल्यू क्या है? इंफिनिटी। और 0 पे क्या है? 0। बीच रास्ते में एक्सेस को इंटरसेक्ट नहीं करना है और 2a पे इंफिनिटी लेना है। तो बिटवीन 0 एंड 2a ग्राफ हमारा ऐसा कुछ आना चाहिए। इसकी हमें सिमेट्री लेनी है अबाउट एक्स एक्सेस, तो जैसा ऊपर आया वैसा ही नीचे आएगा। क्लियर? सो नाउ यू कैन सी दिस शुड बी द ग्राफ। वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन द रफ स्केच। 100% एक्यूरेट ग्राफ की जरूरत नहीं है। हमारा पर्पस है एरिया को लोकेट करना, देन एरिया वी विल फाइंड यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल। सो ओनली रफ स्केच फॉर द गिवन कर्व इज इनफ। ओके, I hope it must be clear. So with this I am completing today's lecture. आज के लेक्चर में मैंने आपको कर्व स्केचिंग के बारे में बताया। उसके पहले स्टैंडर्ड कर्व एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि ऑलरेडी फंक्शन चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट फाइंडिंग एरिया। प्रॉब्लम गिवन होगी, उसमें हम कर्व स्केचिंग की मदद से डायग्राम बनाएंगे, एरिया लोकेट करेंगे। देन enclosed area we will calculate using definite integral. Okay, thank you.